Hey guys, good afternoon to you all. Myself Tarur, I'm in IT branch second year. It gives me immense pleasure to introduce to you all a speaker for today, Mr. Shashank Mishra. He's a data engineer at Amazon. Except from that, he has been ex-McKinsey and ex-Paytm employee. He has completed his MCA from MNIT Allahabad. Apart from that, he's a public speaker and also a YouTuber. His YouTube channel is eLearning Bridge. It is really helpful. I suggest all of you to visit that once. So, except from that, I think over to you, Shashank Bhaiya. Hey, hi guys. Thank you so much, first of all, for inviting me and giving me this opportunity to interact with you guys. Hi, everyone. Myself, Shashank. And about the introduction and journey. So, for me, it's been like 4 years in the IT industry. And like in this 2020 March, in the month of March, I joined Amazon as a data engineer. And for me, the journey for Amazon was like full of ups and downs because I was already rejected by Amazon twice, and this was the third time like I was able to crack the Amazon. So, like how I started, basically, you can say like when like I did my 10 plus 2 since my family was not very financially strong, right? So we all know the typical you can say Indian mentality कि IITs में जाना है, NITs में जाना है, right? और उसके लिए प्रिपेयर करना है. So वो ही सब था दिमाग में उस टाइम पे. बट सिंस ये एक चीज एक फैक्ट है जो कि पता है कि एफर्ट अकेले उतना नहीं लगा सकते इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए. सो ऑब्वियसली आई वाज लुकिंग फॉर सम कोचिंग्स एंड मेंटरशिप, बट डेफिनेटली वी नो द अमाउंट how much we need to pay for those costly coachings and all. So again, like I had to drop that idea and I asked my dad that I'll take admission in some government university and probably I'll figure out something for me because I like had no idea about my life, my future, like how it is going to be and what will I do in the future. So I just took an admission in the like BSc Computer Science, Lucknow University, and we all know the situation in the government universities, mostly like the education environment, and for me बहुत ही मतलब सफर करने वाला टाइम था मेरे लिए गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एक ही रीजन की वजह से मैंने ज्वाइन करा था वहां पे, बिकॉज की फीस कम थी, लाइक 7-8 थाउजेंड देने होते थे कुछ ईयर में, फीस इतना ही था. एंड एजुकेशन के मामले में इफ यू लाइक सी नहीं हो पाता यार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, बिल्कुल भी टीचर्स आते नहीं थे, हम कुछ पढ़ते नहीं थे, ठीक है, ऐसे मस्ती मानो. और ये वही है कि लाइफ बस चल रही थी, क्यों चल रही है उस टाइम मुझे भी नहीं पता था. So that happened, and after that, like starting 2 years of my graduation, like those were like literally waste. I had no like past background of the computer science, and even though like whatever teachers were teaching, first of all, like they were not coming into the colleges in the university, but still like whenever they got a chance they joined us in the college classes and whatever they were teaching, and like I was not able to get anything, like what the hell they are talking about, what this programming and all DSAs, these things. So you can imagine the level of my understanding regarding computer science, that I was just memorizing the programs to crack the exams, because somehow I had to manage at least first division so that I can apply into the government jobs or like bank, PO, SSC, ETC and all. So that was the mentality at that time. And and in that direction I was just doing my graduation. But in the third year, like somehow fortunately I got to know about the NIMSET. So not sure like how many of you know about this exam. So it's a like all India level of exam, specifically for MCA. So right now in India, like there are 11 NITs which conducts this MCA program, but you need to crack the NIMSET for that. So I got to know about that, and I thought let's give it a try, because after 10 plus 2, I like didn't give any competitive exam because I was so much scared of it, like the giving exams for IITs, JEs, AIEEE, UPTU, these kind of thing, right? So just given about, and I just like
in the third year of my graduation, I was so serious about my future that okay, this is the opportunity. I need to work hard for that. So I did that, and everything went well. I cracked NIMSET with all India rank 43, and I cracked other exams as well. And then I had like options to go for NIT Trichy, Surathkal, Warangal, and these things. But since NIT Allahabad was near to my hometown, right? So I joined NIT Allahabad, and अब मेन जर्नी यार यहाँ से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज एनआईटी इलाहाबाद जैसी जगह में जब आ गए हम वहां पे, सिंस मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा कंप्यूटर साइंस का, तो जब एक ऐसे कॉलेज में आप पहुंचते हो जहाँ के कि लोगों का लेवल मतलब आपसे इंटू 2000 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोग्रामिंग, कोडिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट्स, देयर नॉलेज, मेंटालिटी, सब कुछ बहुत डिफरेंट था. सो मेरे लिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल मैच कर पाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था. तो एमसीए फर्स्ट ईयर वाज अगेन टोटल टोटल मेस्ड अप. मेरे लिए वो ही सीन था वहां पे, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू गेट any single thing like how to approach programming, how to approach coding, CP, because in my class or people from the BTech, like freshers, first year, second year, those guys were doing really, really well in the programming side and other stuffs, because they were smart. And I was not sure like how these guys are able to understand the things very, very quickly, and I was suffering a lot. But like in the second year start, like when जब मेरे को ये समझ में आया कि भाई अब करना कैसे, अब अगर नहीं करा तो भाई प्लेसमेंट नहीं लगेगी, प्लेसमेंट वगैरह नहीं लगी तो फिर जो होप लेके आए थे इधर से तो वैसे ही सबको जाना है. तो from that point, like I started working hard towards my programming skills, coding. मैं first year, second year, you guys won't believe I was in like masters, MCA second year, but जो बीटेक फर्स्ट ईयर के, बीटेक सेकेंड ईयर के बंदे होते थे, मैं रात में जाता था उनके पास, मैं जब वो फ्री होते थे कि यार मेरे को थोड़ा सा कोडिंग वगैरह के समझा दो, सीपी हैकर रैंक वगैरह जैसे मैं करता था, थोड़ा बहुत कोड शेफ वगैरह जो करता था, तो मेरे को बनाना ही नहीं आता था, लॉजिक की कैसे बनाना है, कैसे बिल्ड करना है यार, क्योंकि बहुत टफ लगता था कि यार ये लोग कैसे इतना डीपी ग्राफ और इन सब के क्वेश्चन इतना इजी कैसे सॉल्व कर लेते हैं. मेरे को तो यही समझ में आता है कि क्वेश्चन पढ़ के यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें डीपी लगनी भी है या नहीं लगनी है. तो ये चीजें होती थी, बट उनके साथ सीख के और मैंने अपने बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स पे बहुत काम करा. लाइक आई फर्स्ट डीप डाइव्ड इनटू द कोर डीएसए, that when to use, why to use, where to use, and this is the keyword I used to follow, and this is the suggestion I used to give everyone, that do not do the things or attempt the things just like by getting influenced by the society. Let's say in your class somebody is a star coder, and sometimes you will feel demotivated because he is able to do it, but you are not still like able to build the logic, simple logics, right? So you will feel demotivated, and by that influence you will probably try to like kill your thoughts, or you will like अपने आप को कोसने लगोगे तुम लोग कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं. तो वो कुछ भी नहीं करना है. फर्स्ट फोकस ऑन द बेसिक्स पार्ट्स, दैट इज रियली रियली मैंडेटरी एंड रियली रियली इंपॉर्टेंट. लाइक कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि पता नहीं बस एक चैप्टर बस एरे का देखा और जाके चले गए हैकर रैंक या कोड शेफ, कोड फोर्सेस पे कि आज तो चैलेंजेस सॉल्व करने. होगा क्या? सॉल्व कुछ होगा नहीं, एंड डिमोटिवेट होके वापस आ जाओगे. सो पहले वो चीज तो समझ लो ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स तो समझ लो ना. आई हैव सीन पीपल, मैंने इंटरव्यूज लिए हैं इतने टाइम में, इतने इंटरव्यूज मैंने दिए हैं. आई हैव सीन पीपल, they know the like C++ STL, you have heap function, right? You can use it and you can solve your question. But अगर अंडर द हुड नहीं पता है कि हीप बनानी कैसे एक्चुअली, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू क्रिएट अ हीप एक्चुअली, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इट, कहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, कहां पे नहीं यूज कर सकते. सो ये चीजें नहीं पता, देन यू वोंट एबल टू लाइक पिक द आइडिया, पिक द एल्गोरिथम, बिकॉज इन द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस like it's a narration, it's a theory, right, where you need to read it twice and thrice and try to understand, okay, this algorithm and this data structures I need to use to solve this particular problem. and ये चीज तभी build up होगी जब deep dive करके applications, when to use, where to use and why to use सीख जाओगे. सो सेकेंड ईयर मेरा यार उसी चीज में गया अच्छे से. एंड अगेन मैंने कभी
मैंने कभी कह लो या मेरे कॉलेज के सीनियर्स इतने नहीं अच्छे थे भाई कि जिन्होंने हमें गाइडेंस दी हो या मेंटरशिप कुछ दी हो, तो आई वाज नॉट इनटू दी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। मैंने प्रोजेक्ट भी थे जो कॉपी पेस्ट कर लिए थे बस क्योंकि फैकल्टी को दिखाने थे, तो वो सब मैंने गैप्स बहुत फील करे हैं। तो इसीलिए मेरा जर्नी भी उसी तरीके का ही स्टार्टिंग का रहा इंडस्ट्री में। मैं स्टार्टिंग में इतना कुछ नहीं सीख पाया, एंड आज जितना कुछ मैं बता रहा हूँ वो मैं जो 4 साल में सीखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स, importance of development skills, importance of core CS fundamentals, importance of programming, competitive programming, वो 4 साल में जो मैंने खुद से सीखा है इंडस्ट्री में, वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। सो वही चीज है, मतलब अब थर्ड ईयर में जब प्लेसमेंट्स का टाइम आया, मतलब ठीक, आई वाज समहाउ गुड एट दी प्रोग्रामिंग साइड, सीपी साइड थोड़ा बहुत जितना भी मैं अच्छा था, बट वही स्टार्टिंग की 7-8 कंपनीज निकल गई गाइज, एंड आई वाज नॉट इवन एबल टू क्रैक दी रिटर्न राउंड। तो उसमें अमेजोन, फर्स्ट कंपनी अमेजोन थी, उसमें ही दिया था, उसमें रिटर्न राउंड ही क्लियर नहीं हुआ था। फिर लाइक एडोब आई थी, सैप लैब्स आई थी, पेटीएम आई थी, वूकर आई थी, ठीक है, एंड एक दो और कंपनी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम। सो वो निकल गए, तो उसमें मेरा हुआ ही नहीं। देन केम ओपेरा सॉल्यूशंस, एंड वहां पे लाइक आई वाज एबल टू क्रैक इट्स लाइक ऑल 5-6 राउंड्स, एंड हो गया मेरा। बट तुम लोग खुद बिलीव नहीं करोगे, उनका पैकेज सिर्फ लाइक 5 LPA था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ मिसकंसेप्शन लोगों का दूर करना चाहता हूँ, जो आई हैव सीन, लाइक आप लोगों ने खुद ये डिबेट देखी होगी और सुनते होगे लोगों से कि हम टीयर 1 कॉलेजेस, टीयर 2, टीयर 3 कॉलेजेस की बात करते हैं। सो मैंने क्या मेहनत नहीं करी, करी मैंने भी मेहनत, ठीक है, बट समहाउ चीजें नहीं हो पाती हैं। लोगों को ये लगता है कि टीयर 1 में जो बंदे हैं वो मेहनत करें या ना करें, उनको नौकरी प्लेट में रखी हुई मिल जाएगी। एफर्ट मुझे भी करने पड़े, मैं भी कोई इतनी बड़ी प्लेसमेंट नहीं ले पाया, ठीक है। बस अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास कि हाँ उस कॉलेज में रह के मेरे को कंपनीज में इंटरव्यू देने के चांसेस मिल रहे थे, बट मैं शायद मेरी प्रिपरेशन में कोई ना कोई गैप तो रहा ही होगा, जिसकी वजह से मैं स्टार्टिंग की उन बड़ी कंपनीज में नहीं क्रैक कर पाया इंटरव्यूज, ठीक है। तो वो ठीक है, वो गैप्स रह गए, उनको मैं वो सिचुएशन में बदल नहीं कर सकता, बट जो मेरे सामने प्रेजेंट में है मैं उस पर ही ध्यान दे रहा था। तो पहला चांस वो था यार अमेजोन में रिजेक्ट होने का था। सेकंड, फिर वही इंडस्ट्री में सीखते गए, डेवलपमेंट स्किल्स पे ध्यान दिया। जब आई वाज मेकिंग माय फर्स्ट स्विच, then I again appeared into Amazon interviews and I was rejected in the third round, and I was not demotivated because I was learning from my mistakes, and मैंने कभी मतलब ये गिव अप वाला एटीट्यूड फॉलो नहीं करा। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, सेकंड टाइम आई विल ट्राई थर्ड। तो फिर अगेन मैंने इस 2020 में अप्लाई करा, एंड दिस टाइम लाइक आई वाज एबल टू like crack it. So that was the overall journey, like my academics and how I managed into the NIT, my, you can say, academic part, and the industrial journey and till the Amazon. So that was all about the introduction and journey. And I'm not sure like कि बोरिंग नहीं लगी होगी तुम लोगों को, बट दैट्स अ फैक्ट। लाइक मैंने यही फील करा। आई नो तुम में से मोस्टली जो हो गए अभी वो बीटेक से ही हो गए, बट मैंने ऐसी जर्नी देखी यार, मैंने टफ बहुत मतलब कह लो रफ एंड टफ लाइफ जी है अपनी। तो मेरे लिए वो यही है कि तुम लोग थोड़ा उस चीज को अगर समझोगे तो जितना जल्दी अपने फ्यूचर के लिए तुम सोचने लगोगे, मुझसे वही चीजें लेट हुई, गलती हुई, वो मैं अपने गैप्स बता रहा हूँ इस कन्वर्सेशन में, मैं वही शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि तुम लोग अभी मेरे लिए भी लाइक एज अ मैं किड्स ही तुम्हें ट्रीट करूंगा। यू आर जस्ट स्टार्टेड, यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर कॉलेज लाइफ, और अभी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही हो, और मैंने बहुत लाइफ देखी है। सो अगर मेरे इस जर्नी में से कुछ भी पॉइंट्स तुम्हें लगते हैं कि तुम्हारे लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उस तरीके से यू कैन टर्न योर करियर। Yes, sir. So your journey was really inspirational for all of us. Like हमें कैसे आगे मूव करना चाहिए उसमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। Yep, thanks. So next would be how did you started competitive programming and how was your journey in it? Correct. Okay, so this one guys, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज भी है बहुत। लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का हम जब बोलते हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज सीरियसली इम्पॉर्टेंट, बट समटाइम्स एक यहाँ पे दो चीजें हैं इसकी, ठीक है। एंड लोगों ने इस चीज पे भी अगेन टॉपिक डिबेटिव चीजें हैं सुनी होगी कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंडेटरी है या नहीं है, ठीक है। सो पहला चीज तो मैं यही बोलूंगा गाइस, इसको मैंडेटरी मत बना लेना कि मतलब अगर ये नहीं कर पाए, उसके अलावा चाहे तुमने सब कुछ कर लिया, तुमको डीएसए बहुत ही एकदम अच्छे से आता है, डीप ड्राइव आता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बहुत सॉलिड है, डेवलपमेंट स्किल बहुत सॉलिड है, वो सब तुम्हें आता है, बट तुमने सीपी नहीं कर रखी,
तो तुम अच्छी कंपनीज में नहीं जा सकते। सो ये एक मिथ है, ठीक है। सीपी, मैं सीपी का कुछ पर्सपेक्टिव अलग देखता हूं। पहला तो मैं यही देखता हूं कि इट डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प्स यू टू इनहांस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड like learning about the DSA, where to use, when to use, why to use is one aspect, but its real time implementation is another aspect, right? And that aspect you can achieve in the competitive programming itself, because the level of question that will be amazing, and वहां पे like तुम्हें बहुत ड्रिल करना पड़ेगा, अपना दिमाग एक्चुअल में तुम्हें चलाना पड़ेगा भाई कि ये करना कैसे है। एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो होंगी, लाइक व्हेन यू विल बी वर्किंग इन दी आईटी इंडस्ट्री ऑन डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वहां पे तुम्हें ये चीज इसी थॉट प्रोसेस में सोचनी है एंड इम्प्लीमेंट करनी है। So CP plays an important role. It will definitely help you to stand out from the crowd, right? Because जब जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे तो वहां पे कोई एक एक्स फैक्टर होना चाहिए, दिखना चाहिए। एंड फ्रेशर्स के लिए मोस्टली कंपनीज टारगेट दिस पार्ट, द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट, बहुत मेजर एडवांटेज होता है। सो इफ यू थिंक कि तुमको क्राउड में से, इतने लोगों की भीड़ में से अलग दिखना है, देन तुम्हारे पास ऐसी अचीवमेंट्स होनी चाहिए। इट कुड बी लाइक नंबर ऑफ हैकाथॉन्स, इट कुड बी गुड स्टार रेटिंग्स ऑन डिफरेंट लाइक कोडिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स, राइट? सो वो इंपॉर्टेंस तुम्हारे लिए क्रिएट करेगा, वो तुम्हारे लिए एक पाथ क्रिएट करेगा, सो दैट यू विल गेट नोटिस बाय द रिक्रूटर्स, राइट? सो दैट वाज लाइक द इंपॉर्टेंट रोल। Second point, language. So first of all, language is not a constraint. Like when you guys will be appearing into the placements and internships exams, definitely there will be online tests. So there, or even in the face to face interviews, language is not a constraint. Like nobody will ask you to नहीं C में ही code करना है चाहे जो हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। You are free to choose like the language of your interest while coding the things. So but if you want my personal suggestion, so definitely I would say go for C++. If you are mostly thinking from the CP perspective, that's a very very good one, because Java मेजरली यूज करोगे इंडस्ट्री में, प्रोजेक्ट्स वगैरह में, बैकएंड वगैरह में, ठीक है, फ्रंट एंड में JS वगैरह। तो वो लैंग्वेजेस जब तुम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वाला काम करोगे तो वहां खुद से तुम सीख जाओगे, राइट? बट for the CP and to like start your programming journey, go with C++. That would be like really really handy. And मैंने भी मतलब यही करा था, क्योंकि मेरे लिए तो C++ पे जंप करना बहुत ही टफ हो जाता, क्योंकि मुझे पहले प्रोग्रामिंग का इतना बैकग्राउंड ही नहीं पता था। तो मैंने तो C से स्टार्ट करा था, क्योंकि फर्स्ट आई हैड टू टेक एन आइडिया हाउ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग वर्क्स, देन आई कुड हैव जंप ऑन टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट। सो आई स्टार्टेड विद C, बट जैसे ही जल्दी से वो रैप अप हो गया मेरा, C मेरे को अच्छे से आ गया था, देन C++ ने इतना टाइम नहीं लिया मेरे लिए, तो वो भी मैं फटाफट कर लिया। एंड मैं फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस में थोड़ा फास्ट सॉल्व कर पा रहा था। बट जब तक C मेरे को आता था, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था कि यार कैसे जल्दी से CP कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, क्योंकि भाई C++ में STL का सपोर्ट इज टू गुड। एंड अगेन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हैं, तो वहीं से इंट्रोडक्शन उस चीज के, एंड देन फिर जावा एंड जावास्क्रिप्ट, या जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वहां पे इट कुड बी पाइथन एज वेल, एंड इट कुड बी JS और लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। थर्ड वन, लाइक when is the best time to start with CP? So for like जब ये जो CP वाला टाइम है ना, अब इसके लिए ये चीज बिल्कुल नहीं मैं बोलूंगा कि यार अगर किसी बंदे ने 3 साल तक नहीं करी, तो जब 4th ईयर में प्लेसमेंट का टाइम आ रहा है तब तुम CP करने बैठ जाओ, ठीक है, देन इट वुड बी लाइक अ बैड आइडिया। क्योंकि वहां इतना लेट स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली डीमोटिवेटिंग ही होगा, क्योंकि भाई सबको पता है कि इतना जल्दी सॉल्व नहीं हो पाती चीजें, ठीक है, CP में, कि हमने बस वो कोई नॉर्मल लाइक GFG क्वेश्चन नहीं है, या कहीं पे नॉर्मल ऐसे बहुत ही ऑफ एंड आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ही डेडिकेटेड सॉल्यूशन है एंड पढ़ लिया, नहीं। सो वहां पे इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो इसके लिए हमें अपनी जो ये जर्नी है CP की और जो पेस है वो पहले से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। सो आई वुड डेफिनेटली से लाइक द मिड ऑफ योर सेकेंड सेमेस्टर वुड बी द बेस्ट टाइम। Like if somebody let's say join a college, he is in first year, and mid of second year,
because utna time period, as I said, like first you have to dedicate a good amount of time to understand the DSA actually, right? You have a good books, like you can follow Lipsus for data structures or any other good books if you know. And for algorithms, Coreman is there. Like Coreman is like a Bible kind of thing for the algorithms part, right? So just deep dive into it, understand the things, right? Make a good habit of writing code on pen paper or in a Google Doc itself. Like don't be much habitual of using the IDE or any code, automated code completion, because in that way what it will definitely help you. Like if you are practicing the thing on pen paper, it will help you to remember the function name sometimes, because even in the face to face interviews or on the online coding test, there will be no auto completion, right? So you, like the writing code on pen paper, it is going to definitely help you to memorize the things as well, like the important parts. So the mid part, that's what I said. The second year mid would be the like very decent time to start with the competitive programming. Before that, dedicate like your 5 months, 6 months, I would say, the exploration of the programming language and deep diving into the DSA part. Fourth one, the roadmap, like how to start the competitive programming. So the decent time, I totally talked about it. And the first step, the baby step, was understanding of good programming language. Like I'm talking about the roadmap, like when you should actually jump on the CP. First, like cover this one. Baby step would be programming language. uh, Good expertise, take a good expertise on it. Second one would be like the understanding of core DSA, and third one would be the actual your practice on the competitive programming side, right? So for that, I have seen people like participating on n number of online platforms. So it is also not recommended, I would say honestly. I mean, there are obviously good platforms. So if you want to practice like very good and hard level kind of questions, then start with code forces. Okay, if you feel confident that you can solve that level of questions. But if like you want to go level by level, I would say start with either hacker rank and code chef. Okay, so hacker rank, personally my personal favorite was hacker rank. I was like doing the competitive coding more. I have done like the competitive प्रोग्रामिंग मेजरली ऑन दी हैकर रैंक. सो मेरे को अच्छा लगता था क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा बंदा हूँ जो कोई यूआई थोड़ा सा पसंद है. तो हैकर रैंक का काफी डिसेंट मेरे को वो चीज लगता था. एंड कोड शेफ अगेन डेफिनेटली लॉन्ग चैलेंजेस वगैरह है, काफी हेल्पफुल होंगे, बिकॉज देयर यू विल have a like a good amount of time to think through the solution and drill down into it and then submit your solution. So that's again one good thing. And short challenges, definitely it will help you to speed up, like अपनी speed improve करने के लिए बहुत help करेंगे. So उसमें भी short challenges में भी काफी participation लेना है. And again इतना तो करना ही है guys, but थोड़ा हैकाथॉन्स वगैरह पे भी फोकस करना है सीपी के. एंड अलॉन्ग विद दैट, जब प्रोजेक्ट वगैरह डेवलपमेंट का साइड आएगा तो हैकाथॉन्स वगैरह पे, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, इन पे भी फोकस करना है. बिकॉज अगेन जो मैं पॉइंट पे हाईलाइट कर रहा था कि क्राउड से कैसे अलग दिखना है, तो वो जो अचीवमेंट्स और वो जितना भी क्वालिटी वहां से अचीव होंगी, वो ही जो चीजें तुम मेंशन करोगे रिज्यूमे पे, दैट विल हेल्प यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. And fifth one, like the consistency, how to be consistent and motivated. So for the consistency, definitely better time management is the best solution. Like you have to distribute your time daily, at least on daily basis, you have to give at least like 2 to 3 hours, 2 to 3 hours definitely to the programming and coding side, right? So that's how you will be able to maintain the consistency. And मोटिवेशन इज समथिंग, ऑब्वियसली यार जिसके लिए लगता है कि कैसे मोटिवेट होंगे हम, ठीक है, हमें खुद रहता है कि यार कभी अगर सॉल्व नहीं हुआ कोई चैलेंजेस, लेट से 2-3 चैलेंजेस ही खराब चले गए या सॉल्व भी नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है. बट वो ही नहीं करना है. तो एंड करना क्यों नहीं है, क्योंकि उससे कंसिस्टेंसी पे बहुत फर्क पड़ता है. तो मोटिवेट कैसे रह सकते हो बेसिकली, कि जब कोई ऐसी चीज आती है तो उसको दिल से इतना नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम अपने आप को थोड़ा
बहुत ही फील कराना स्टार्ट कर देते हैं ना यार कि आई एम यूजलेस, कुछ हो ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे करूंगा, प्लेसमेंट लगेगी या नहीं, दुनिया भर के बहुत हर तरीके के निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो अपने आप को कर्स नहीं करना इतना, ठीक है, कोई मिस्टेक हुई, ट्राई टू एनालाइज इट कि यार अभी भी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है जिसकी वजह से मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ चीजें, ठीक है। जब वो चीजें फिगर आउट करने लगोगे तो दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी एंड योर पॉजिटिविटी टुवर्ड्स एनालाइजिंग द मिस्टेक्स, नॉट जस्ट फीलिंग और लाइक एनी रिग्रेट फील करने के लिए नहीं कुछ भी कर। सो ये डायरेक्शन में जब सोचोगे देन यू स्टार्ट लाइक फीलिंग मोटिवेटेड इटसेल्फ। तो ये मेरा फंडा रहता था हमेशा, मैं पॉजिटिव चीजों पे अपनी एनर्जी लगाने लगता था एंड अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करने में तो कभी मेरे को डीमोटिवेटेड फील नहीं होता था, क्योंकि जितना दिल से लगाओगे उतना ज्यादा बुरा लगेगा, जितना लाइट लोगे तो उतना बुरा कभी भी नहीं लगेगा उस चीज के लिए। Tarun, can you move on to the next slide? Yes, sir, sure. Okay, so Just okay, how should a beginner start? Schedule for a beginner to grab a dream job. That's a good question. So for a beginner, guys, there are few very important things. Like as I said, like कि मैं बताता हूँ कि एज अ फ्रेशर और एज अ बिगिनर और एज अ नूब जब आप कह लो कि कंपनीज में अप्लाई करते हो तो कंपनीज एक्चुअली आपसे एक्सपेक्ट क्या क्या करती हैं, मैं उन चीजों पे फोकस करूंगा, ठीक है। एंड देन आई गेस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यार क्या क्या चीजों पे मेरे को इतना ज्यादा फोकस करना है, राइट। फर्स्ट थिंग जो मैंने बोली कि सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा डीएसए, ठीक है। और ये जो दो पार्ट हो गए स्टार्टिंग के, योर प्रोग्रामिंग पार्ट एंड द डीएसए पार्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी टू लैंड इनटू अ गुड जॉब एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, ठीक है। थर्ड वन कि जो कंपनीज आ रही हैं या जो कंपनीज हैं मार्केट में, दे आर नॉट ओनली ट्राइंग टू हायर प्रो कोडर्स, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हायर गुड इंजीनियर्स, राइट। सो अब एक अच्छा इंजीनियर कैसे आप बनते हो? आप एक अच्छे इंजीनियर केवल डीएसए प्रोग्रामिंग पढ़ के नहीं बनते, राइट। आपके पास अच्छा एंड सॉलिड फंडामेंटल बेस होना चाहिए आपके कोर सीएस फंडामेंटल सब्जेक्ट्स का, लाइक like object oriented programming, second the databases, networking, operating systems, right। ये हो गया एक पार्ट। नेक्स्ट आते हैं कि अब वही जो मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो उसमें एक और चीज क्या आनी चाहिए, अच्छे डेवलपमेंट स्किल्स, राइट। बिकॉज जब आईटी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे तो हमें एक्चुअल में उन्हीं चीजों पे काम करना है, राइट। वेदर इट कुड बी अ फुल स्टैक इंजीनियर, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, आई विल बी वर्किंग ऑन सम प्रोडक्ट्स, राइट। एंड वहां पे आपको इफ यू डू नॉट नो कि डेवलपमेंट स्किल्स अगर आपको आते ही नहीं है, लाइक हाउ टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, राइट, लेट्स से हाउ टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन, सो अगर आपके पास वो डेवलपमेंट स्किल्स ही नहीं है देन हाउ यू विल प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर अ गुड इंजीनियर, और आप कैसे सर्वाइव करोगे आईटी इंडस्ट्री में? आप केवल प्रोग्रामिंग या डीएसए के बेसिस पे नहीं कर सकते। So these things plays a very important role. You're the programming side, the DSA side, your core CS fundamentals, and fourth one, the most important projects, good projects, right? So मैंने प्रोग्रामिंग का तुम लोगों को बता दिया, डीएसए में तुम लोगों को क्या करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया। कोर फंडामेंटल्स जो जो सब्जेक्ट्स है ना उन पे लोग फोकस नहीं करते हैं एंड ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। सो मैं बता देता हूँ जो प्लेसमेंट राउंड होते हैं उनमें जो हमारा फर्स्ट कह लो कि स्क्रीनिंग राउंड जो होता है ऑनलाइन वाला, ठीक है, उसमें कोडिंग क्वेश्चंस भी होंगे एंड देयर विल बी अ सेपरेट सेक्शन जहां पे कि मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। एंड वो जो एमसीक्यूज होते हैं वो मोस्टली इन्हीं टॉपिक से ही होते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई, नेटवर्किंग हो गई, डीबीएमएस हो गए, ठीक है। एंड यहां से ही उनके क्वेश्चंस बनते हैं। एंड इवन इन दी फेस टू फेस इंटरव्यूज, इंटरव्यूअर लेट से एक कंपनी में 5-6 राउंड्स होने इंटरव्यूज के, अब 5-6 राउंड में वो सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। स्टार्टिंग के ईदर 1 और 2 राउंड्स आर मोर देन इनफ टू चेक समवंस एल्गोरिथमिक
टैलेंट यू कैन से, ठीक है। तो अगर एल्गोरिथमिकली किसी बंदे को जज करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिस पे कि बंदा कितना सॉलिड है, स्ट्रांग है, तो बस वो फर्स्ट सेकंड राउंड में जज कर लेते हैं। उसके बाद इन्हीं चीजों पे ही फोकस होता है, कोर चीजों पे, कि भाई डेटाबेसेस का कितना जरूरत है एंड कितना नॉलेज आता है, ओएस का कितना। ग्राफ विद डीपी कहीं यूज कर रहे होगे तुम, ये चीजें यूज कर रहे होगे कि कैसे एचटीटीपी कनेक्शन बनाना है, ठीक है। कैसे जो मेरा डेटाबेस है, ठीक है, कैश कैसे करनी है चीजें, डेटाबेस जो है मेरा उसको नॉर्मलाइज कैसे करना है, सो दैट जो मेरी रिक्वेस्ट आ रही है क्वेरी से जो क्वेरी एग्जीक्यूट हो उसका आउटपुट कैसे फास्ट कैसे आना है जेसन पे, राइट। ठीक है, वहां पे ये चीजें तुम बनाओगे। अपने प्रोजेक्ट के स्केल कैसे करना है, माइक्रो सर्विसेज कैसे बनानी है, रेस्ट एपीआई कैसे बनानी है, ठीक है, एक्चुअल में हम वहां पे वो कर रहे होंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वही चीजें तुमको अच्छे से आती हैं, दैट मीन्स आप एक अच्छे इंजीनियर खुद से बन रहे हो, तो हर चीज को टाइम डेडिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 4 ईयर तक सिर्फ सीपी प्रोग्रामिंग एंड डीएसए करते रह जाओगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। जो मैंने बात बोली थी कि कहीं से प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया, फैकल्टीज को दिखा दिया, ग्रेड्स ले लिए एंड चले गए, ठीक है। एंड फिर एक फायदा क्या होगा, इंटरव्यूज ही जब नहीं क्रैक कर पाओगे, लेट्स से पहला राउंड क्रैक कर लिया, दूसरा तीसरा कर लिया, चौथे पांचवें राउंड में अटक जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है रिज्यूमे पे, राइट। तुम्हारे पास अच्छे डेवलपमेंट स्किल्स नहीं है, तुम्हें बैकएंड में कुछ इतना नहीं आता, ना तुम्हें फ्रंट एंड में आता है, तो वो ही फिर गैप क्रिएट कर देगा एक अच्छी जॉब में जाने के लिए, राइट। तो वो एरिया है जिसपे फोकस करना बहुत जरूरी है। एंड फॉर द प्रोजेक्ट्स I have seen people are just like running behind very very fancy keywords that AI, ML, data science, वो इनके बारे में ही सोच रहे हैं। और वो इनके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास के लोग सिर्फ वही बातें कर रहे हैं। एंड मैं हमेशा से इस चीज के खिलाफ रहा हूँ कि सामने वाला अगर कोई बोल रहा है तो मैं कैसे उसकी बात को ले सकता हूँ कि हाँ वो चीज जो बोला मैं वही करूंगा। उसने बोला है कि डेटा साइंस करना है, एआई एमएल करना है, तो मैं कर रहा हूँ। नो, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा फ्रेशर्स को यही एक सजेशन देता हूं कि यू कैन डेडिकेट 1 मंथ 2 मंथ। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही ये चीज स्टार्ट कर तो वेल एंड गुड, राइट। फिर भी अगर लेट से लेट हो जाता है तो सेकेंड ईयर के एटलीस्ट आप 1-2 मंथ बहुत अच्छे से डेडिकेट कर सकते हो टू एक्सप्लोर डिफरेंट डोमेन्स। लाइक यू शुड एक्सप्लोर एंड्रॉइड डेवलपमेंट एज वेल, iOS development as well, cyber security, blockchain, data science, AI, ML, data engineering, cyber and web development, front end developer, everything, बहुत कुछ है। क्योंकि आपको अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी दूसरे की बात सुन के लेट से आपने डेटा साइंस में हाथ डाल दिया एंड फिर 4 महीने बाद आप रिग्रेट कर लो, यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इतनी मैथ्स मुझे आती नहीं, आई कैन नॉट प्ले विद डेटा, आई डोंट नो हाउ टू लाइक राइट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर आप रिग्रेट करोगे क्योंकि आपको वो लगेगा यार मेरे को तो डेटाबेसेस बहुत अच्छे से आते थे, मैं बढ़िया से बैकएंड बना लेता था, फ्रंट एंड बना लेता था, मैं तो उसमें इंटरेस्टेड था। अब सामने वाले राहुल ने बोल दिया तो मेरे बैच का है, मेरे को लगा अच्छा प्रोजेक्ट हो गया यार, मैं भी करता हूँ डेटा साइंस में। ये नहीं करना है। ये यही तो एक चीज है जिसमें कि बहुत लोग सबसे ज्यादा फंस रहे। सो फर्स्ट डेडिकेट गुड अमाउंट ऑफ लाइक आप 2-3 2.5 महीने का 3 महीने का टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, because every single technology has its own relevance in the IT industry, like Android, iOS, like उसके बिना तो you cannot even imagine your life, because apps नहीं होंगी तो आप क्या यूज करोगे, स्मार्टफोन्स में क्या यूज करोगे आप, ठीक है। so you can understand the relevance of each and every single technology running in the IT industry, right? So create projects around that, do not try to copy somebody else, like आई वोंट से दैट कि आप बहुत एक फाड़ू आइडिया के साथ बाहर आ सकते हो, बट जो भी आप आइडिया सोच रहे हो, इफ दैट आइडिया इज समहाउ इम्पैक्टिंग द सोशल कॉजेस, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन सम रियली रियली गुड प्रोजेक्ट्स। बिकॉज जब ऐसे प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो आप बहुत अच्छी चीजें लर्न करते हो, ठीक है। एंड एक सॉलिड अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट वही ये पुराना सा वही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना दिया और कुछ भी ऐसा कर दिया, बहुत हो गया, वो बेकार हो गया, कुछ नहीं करना है वो, ठीक है। तो नया सीखना है, नई चीजों पे फोकस करना है। एंड जब ये एक ओवरऑल पैकेज बन जाओगे, देन आई कैन गारंटी यू विल डेफिनेटली लैंड इनटू योर ड्रीम जॉब। तो अगर ये चीजें इस वे में फॉलो कर, अगर हॉच पॉच करोगे, जंबल करोगे, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर रैंडम चीजें करना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली देन
ऑफ ट्रैक हो जाओगे, फिर वही है कि शुरू से शुरू करना पड़ेगा एंड अपने मेन एंड गोल तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा. So, so should we shift on to the next slide? Yeah, sure. Okay, sir. एंड यार क्वेश्चंस भी तुम लोगों को होंगे बहुत सारे, डेफिनेटली पूछ सकते हो. अगर बीच में ही लगे रोकना है मेरे को तो पूछ सकते हो, या अगर चाहते हो एंड में करना है क्यूएनए तो वहां पे भी कर सकते हो. तो उसके लिए परेशान मत होना कि हम क्यूएनए नहीं करेंगे. आई नो तुम लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भरे हुए हैं कूट कूट के. सो लाइक दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्सेस डेटा इंजीनियरिंग. सो बोथ लाइक दोनों चीजों का एक अलग अलग रेलिवेंस है एंड इनमें थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी है. एंड आप लोग में से बहुत लोग मतलब सोच रहे होंगे कि डेटा इंजीनियरिंग क्यों, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर एट Amazon. सो मैंने जब अपना करियर था, मैंने भी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही स्टार्ट करा था ओपरा सॉल्यूशंस में, जहां पे कि मैं बैकएंड वाली चीजों पे काम कर रहा था, राइट. सो देयर लाइक दैट कंपनी ओपरा सॉल्यूशन, वहां पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी थे जो कि जिनमें कि दूसरे लोग काम कर रहे थे एंड दोज वर ऑन बिग डेटा. ठीक है. सो एज आई सेड, मैंने कॉलेज में तो इतना कुछ डेवलपमेंट वगैरह सीखा नहीं. सो जब मैं इधर आया, राइट, सो यहाँ पे ओपरा सॉल्यूशन में लाइक आफ्टर स्पेंडिंग 8-9 months, तो मैं हमेशा से उस तरीके का बंदा हूँ लाइक हु लव्स इंटरेक्टिंग विद पीपल. सो ऑन like TT table, office offsite, or the cafeteria, I used to interact with other people as well. That okay, what is going on your project? What kind of skill sets you are working upon? Then those guys told me about this big data. Like what is big data actually? What kind of basic skills sets you should have, and how like it is common with software engineering as well, because there is some overlap between these two profiles as well. ओके. सो वो चीजें मुझे उनसे पता जब लगी, तो देन मैंने टाइम डेडिकेट करा सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए, जिस चीज पे मैं फोकस कर रहा था कि यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स, बिकॉज इंटरेस्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है. And when I started exploring it, I found it very, very interesting and very, very fascinating profile, because working on big data, terabyte, petabyte scale, and distributed application, distributed cluster, like 100 node, 200 nodes. So that was like very, very amazing. So that was the starting point for me as a like the big data domain. So ओपरा में वही मैंने अपने टीम लीड्स एंड अपने मैनेजर से बात करी दैट आई वांट टू लाइक शिफ्ट माय प्रोफाइल. और तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा थोड़ा तो मैंने पढ़ लिया है, बट मेरे को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर चाहिए. अगर मैंने लेट्स से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बट मैंने बिग डेटा के प्रोजेक्ट से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स नहीं कर रखे हैं, तो मेरे रिज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे भाई अगर मैं किसी भी कंपनी में अप्लाई करूंगा. सो दैट मींस आई हैड टू गेन सम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एक्सपोजर एज वेल. सो आई आस्क्ड देम टू प्लीज स्टाफ मी एटलीस्ट 20-30% इनटू दोज प्रोजेक्ट्स वेयर पीपल आर वर्किंग ऑन द बिग डेटा साइड. सो वहां से मैंने धीरे धीरे पिक करना स्टार्ट करा. मैंने जो प्रोजेक्ट्स पे काम करा बिग डेटा वाले मैंने रिज्यूमे पे मेंशन करा. देन फिर था कि आई हैड टू टेक द चैलेंजेस कि डेटा इंजीनियरिंग में अच्छा स्किल सेट सीखना है. देन मैं मूव हुआ पेटीएम में. बहुत फाइट करनी पड़ी मेरे को, मतलब क्योंकि मेरे रिज्यूमे उतना शॉर्टलिस्ट नहीं होते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कुछ बिग डेटा पे काम नहीं कर रखा था. बट समहाउ पेटीएम में अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई क्रैक्ड इट. सो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब, एंड जो डेटा इंजीनियरिंग वाला है, डेटा इंजीनियरिंग मोस्टली अबाउट लाइक working on the large scale of data sets, creating scalable and optimized data pipelines, right? And the overlap I was talking about between software engineering profile and the data engineering, that the understanding of programming, understanding of backend systems, and understanding of data structures and algorithms, वो चीज डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए भी रिक्वायर्ड है. बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेग्रीगेशंस लाइक फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, राइट. तो ये जिस तरीके की प्रोफाइल आती हैं ये इसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर ही, राइट. बट द डेटा इंजीनियरिंग वी मेजरली फोकस टुवर्ड्स द डेटा सॉल्यूशंस. सो आई टेक एन लाइक एग्जांपल. मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तुम्हें कि एक डेटा इंजीनियर डे टू डे में करता क्या है. सो लेट्स से मैं Amazon ई कॉमर्स हूँ, राइट. एंड Amazon ई कॉमर्स पे पता है ऑन एवरी लाइक मिनट there are millions of transactions are happening, okay. And let's say जो Amazon की internal teams हैं, they want to analyze that data, because we all know nowadays in the 20th century
the importance of data is like so much. All right, because बहुत important है, information economy इसको बोलते हैं, and that is all because of the data analysis. कोई भी company data को बस ऐसे databases में रखना नहीं चाहती. They want to like take something meaningful insights from it. So that is happening, and every single enterprise want to like utilize their data in a best way. तो अब वही Amazon ई कॉमर्स की जैसे मैं बात कर रहा था, तो मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर हैपनिंग, एंड लेट्स से हमारे Amazon में, ठीक है, दूसरी बिजनेस टीम्स हैं जो कि लेट्स से ये इंसाइट देखना चाहती हैं कि कितना रेवेन्यू पैटर्न क्या है, कि भाई 2019 में लेट्स से हमेशा भाई दिवाली सेल्स आती है, राइट? सो वो एक ट्रेंड देखना चाहते हैं कि 2016 से 2020 तक अभी तक हमने जितनी दिवाली सेल्स वगैरह करी, कौन से ईयर में रेवेन्यू का पैटर्न क्या था. लाइक दे वांट टू लेट्स से सी अ सिंपल बार चार्ट ऑन अ ट्रांसफॉर्म डेटा. ओके, सो अब प्लेटफॉर्म जो Amazon ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस पर जो एक्टिविटी हो रही है, वी आर कैप्चरिंग दैट डेटा एंड दैट विल बी स्टोर्ड समवेयर. It could be a MySQL database, it could be a NoSQL database, it could be a distributed file system like AWS S3, और a simple file हो सकती है जो डेली बेसिस पे जनरेट हो रही है एंड SFTP सर्वर पे है, राइट? एंड दैट डेटा इज वेरी वेरी ह्यूज, लाइक इन टेराबाइट्स एंड इन पेटाबाइट्स. So to analyze it or to find something meaningful, definitely we need to apply some business logics. We need to transform the data by putting some transformation logic, and there comes the coding part where we will be coding the things. Okay, like we will be writing an application, distributed application, which will extract the data from different sources, and whatever logic we will apply, we call it as a ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो वो ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं एंड एक फाइनल रिजल्ट जो भी जनरेट होता है, वी डंप इट इनटू द डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स. इट कैन अगेन MySQL database, NoSQL, or any kind of distributed file system. So that is called the data pipeline, which I talked about. Source, your transformation part, and the destinations. So entire thing basically known as the pipeline creation. So like creating scalable and optimized data pipelines is like a day-to-day activity. Like it's very very high level picture, because इससे और भी ज्यादा roles and responsibilities होती हैं as a data engineer. So मतलब ये चीज एक डिफरेंस होता है. So अब वही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल में देखोगे, जो मैंने बताया कि you have multiple options. I mean, the back-end part, the front-end engineering, mostly you will be working on the web apps, right? Web applications majorly, that will be your area of expertise, and like creating the backend APIs, REST APIs, these kind of things. But as a data engineer, our prime focus will be playing around the data itself. So that is again an interesting field to work with, guys. But as I said, you have to create your interest first. Like you can explore it. If it looks good to you, you can start preparing for that. And in the market, both the profiles, like if you're targeting good product based companies, the pay scale is very very nice for both of the profiles. So plan accordingly. जितना जल्दी थोड़ा सा तुम लोग सोच लोगे अपनी करियर प्रोफाइल्स के बारे में, मार्केट में थोड़ा उतना जल्दी स्टेबल हो जाओगे, उतना जल्दी थोड़ा अच्छे अच्छे पैकेजेस पे भी पहुंच जाओगे. Yes, sir. Opportunities for non-tech branches. So guys, यार इसके लिए मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे इतने लोगों को फीचर करा है, उनमें से कई ऐसे लोगों को भी मैंने फीचर करा है जो कि मतलब टेक ब्रांच से बेसिकली नहीं थे. ठीक है, मैंने सिविल के भी कर रखे हैं, ठीक है, और अदर मतलब ईसी वगैरह के भी बंदों को फीचर कर रखा है. दे आर वर्किंग इन टेक जायंट्स, राइट? लाइक माइक्रोसॉफ्ट जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी, समटाइम लाइक गूगल जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं वो लोग. सो ऐसा नहीं है दैट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, राइट? एंड एटलीस्ट लाइक कॉलेज में ही कंपनीज जितनी भी जैसे आएंगी, ठीक है, अच्छी कंपनीज जैसे आती है, उनमें मोस्टली प्लेसमेंट्स में चांस मिल जाता है कंपनीज में बैठने का, प्लेसमेंट ड्राइव्स में, लाइक नॉन टेक जो ब्रांचेस हैं उनके बंदों को भी. बट आप लोगों को डेफिनेटली थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, स्टार्टिंग से ही चीजों में, वेदर इट इज प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डीएसए प्रोजेक्ट्स एंड ऑल.
सो अच्छा वैसा कुछ क्रैक करना है तो डेफिनेटली यार यू हैव टू स्टैंड आउट। आपको स्टार्टिंग से पुश करना पड़ेगा अपनी चीज को। अपॉर्चुनिटीज हैं, डेफिनेटली हैं, बट अगेन सिंस मैं डेटा डोमेन में हूँ इतने टाइम से, सो आई हैव सीन people who are in the non-tech branches gets more and more opportunity into the big data domain, because उनके लिए वहां पे बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं। एंड मैं प्रोफाइल का नाम जैसे लूं तो डेटा एनालिस्ट, राइट, एंड बिजनेस एनालिस्ट, बीआई इंजीनियर, ईटीएल डेवलपर, एंड इवन द डेटा साइंटिस्ट एज वेल, बिकॉज जो इस डोमेन में है लाइक नॉन टेक, अगर from the beginning they are working towards the analytical part, the reasoning part and the mathematics statistics part, right, एंड वो चीजें अगर कर रहे हो आप लोग, देन जब कंपनीज इस तरीके की आती हैं कैंपस में, सर्विस बेस्ड कंपनीज मैंने देखा, ये कंसल्टिंग बेस्ड फर्म्स जो आती हैं, दे यूज टू टेस्ट ऑन योर एप्टीट्यूड स्किल, योर लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। सो मोस्टली वहां पे इन तरीके की प्रोफाइल्स पे ही काम होता है, लाइक टेक एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, राइट। सो वहां पे प्योर मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग स्किल्स, आपके डीएसए स्किल्स आर नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। द मेजर थिंग दैट इज रिक्वायर्ड लाइक कि एनालिटिकली आप कितने स्ट्रांग हो, स्टैटिस्टिकली आप कितने स्ट्रांग हो, मैथमेटिक्स समहाउ बेसिक्स आपको पता है तो कितनी पता है, एंड डेटा के बारे में आप कितना जानते हो, डेटा एनालिसिस के बारे में कितना जानते हो। सो इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, आई हैव मेट पीपल जो इन तरीके की ब्रांच से थे एंड वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, तो आप उस तरीके की चीजें कर सकते हो। एंड मैंने बहुत मेजर स्कोप देखा है इस चीज का, स्पेसिफिकली फॉर दी नॉन टेक ब्रांचेस। सो डेटा डोमेन में गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इट्स मेरा एक ओपिनियन है, मैंने जो तुम लोगों के सामने रखा है, क्योंकि 4 साल में इतना मैंने कुछ देखा है, तो यू गाइस कैन डेफिनेटली प्लान इट। एंड अपॉर्चुनिटीज हैं, उस चीज के लिए बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना कि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेंगी, चाहे बड़ी कंपनी हो, मिड साइज कंपनी हो, स्टार्टअप्स हो, मिलेंगी, बट आपको वही है, अपने स्किल सेट्स पे काम करना पड़ेगा, तभी शॉर्टलिस्ट हो पाओगे। लाइक कॉलेज के नाम से नहीं होगा कि ठीक है एनएसआईटी है तो मतलब शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा, बट एट द एंड ठीक है शॉर्टलिस्ट हो गए तो इंटरव्यू तो क्रैक करने हैं, उसके लिए स्किल सेट आना चाहिए होगा। सो दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट। Job experience. Okay, you guys want to know my job experience, right? In the Amazon or in the industry experience? So total industry experience. Okay, so for as I like total industry experience, as I already said, right, that how I started as a software engineer, then how I took a move into the big data domain, right? So far my industry experience is so good. Like start यहाँ से करा था एंड ग्राफ अभी तक ऐसा है, एंड ऑन डेली बेसिस लाइक आई एम जस्ट कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी जगह स्टेबल हो गया, देन आई एम नॉट फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, आई एम नॉट एक्सप्लोरिंग एनी अदर टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट टेकिंग द इनिशिएटिव। सो to gain good skill sets and to be a good engineer, right, and to grow in the IT industry, you have to follow few things, right? First thing, definitely your technical skills, and how your technical skills will be improved if you are taking initiatives to work on challenging project. सो होता क्या है कि जब कंपनीज में प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, टीम्स वगैरह बनती हैं, एंड आप अगर स्केयर्ड हो, ठीक है, आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि आप इस टफ प्रोजेक्ट पे काम कर पाओगे, दैट मीन्स यू आर लूजिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, राइट, टू लर्न गुड टेक्निकल स्किल्स, बिकॉज जितना चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो उतनी ही नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। सो ये पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा सबको, मेरे एक्सपीरियंसेस में ही आप बता रहा हूँ कि मैंने कैसे इतना ग्रो करा, ठीक है। फर्स्ट थिंग, योर टेक्निकल स्किल्स। सेकेंड, ऑलवेज टेक इनिशिएटिव्स टू वर्क ऑन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, राइट। Third one, follow good practices, best practices of a good developer and a good engineer. Like habit होनी चाहिए क्लीन कोड लिखने की, हैबिट होनी चाहिए एक लाइक वेल कमेंटेड कोड लिखने की, सिमिलरली प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाने की। आई नो टीडियस टास्क होता है, लगता है अजीब, लगता है कि यार मेरे को नहीं पसंद है डॉक्यूमेंटेशन लिखना,
बट यही चीजें होती हैं जो एक आपको अच्छा डेवलपर बनाती है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड ऑल्सो यू विल गेट अ विजिबिलिटी ऑन द लीडरशिप लेवल। बिकॉज अब कंपनीज में काम तो कर रहे हैं, काम तो मैं 3 साल 4 साल भी कर सकता हूँ, बट अगर मेरे को टाइम से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, टाइम से मेरा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, देन व्हाट इज द यूज? ठीक है, क्या मतलब मैं कर क्या रहा हूँ? खुद आपको रिग्रेट फील होगा, राइट? सो उसके लिए ही ये सीक्रेट सॉसेसेस हैं जो मैं बता रहा हूँ कि आपको विजिबिलिटी ऊपर चाहिए होगी, तो वो विजिबिलिटी आप कैसे दिखाओगे? अपने टेक्निकल स्किल्स से, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा उससे, द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू आर फॉलोइंग उससे, लाइक क्लीन कोड, डॉक्यूमेंटेशन एंड कमेंटिंग, एंड fourth one would be taking part in the design like discussions as well, because हम वही होता है कि ठीक है मैनेजर ने ये टास्क दे दिया, हमें ये टास्क करना है, ये खत्म कर देंगे हम, ठीक है। हम अगर इतनी मेंटेलिटी वहां तक अगर रखनी है, तभी भी हम कुछ नया नहीं सीख रहे। सो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट या किसी चीज पे काम होता है तो स्टैंड अप्स होते हैं, मीटिंग स्टैंड अप्स होते हैं एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। सो यू ऑल्सो नीड टू थिंक थ्रू दैट कि क्या बेस्ट चीजें मैं इससे कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई इनपुट है, अगर हम बैकएंड बनाने स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहिए, बिकॉज डिबेट्स होंगी वहां पे जब एक आर्किटेक्चर बनता है प्रोजेक्ट का। सो वहां पे बहुत डिस्कशंस होते हैं, सबके इनपुट्स लिए जाते हैं। सो यू नीड टू स्पीक अप, ताकि लोग समझ पाए कि हाँ भाई शशांक को कुछ आता है, उसके भी कुछ सॉलिड इनपुट्स आते हैं जब भी ही टेक्स अ पार्ट इन दी डिजाइन डिस्कशंस। सो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। And next one would be like you have to be a team player, right? And आपको कोलैबोरेटिव होना पड़ेगा। आप एज अ इंडिविजुअल अपने लिए तो सोचना ही है, इंडिविजुअल आपको टीम्स में भी अपनी वैल्यू ऐड करनी है, राइट? एंड वो आप कैसे कर सकते हो? अपने रिलेशनशिप से एक बॉन्ड आपको सॉलिड बनाना पड़ेगा एक टीम में, ताकि भाई जब एक इंडिविजुअल भी बंदे को जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट जब एक प्रोडक्ट रिलीज होता है तो बोलते हैं हाँ दिस टीम हैज वर्कड ऑन सच एंड सच थिंग्स, जिसके की मेंबर्स ये लोग हैं। एंड आपका अगर टीम में ही कोलैबोरेशन अच्छा नहीं है, देन प्रॉब्ली यू वोंट बी एबल टू लाइक क्रिएट अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो वो चीज अगर बनानी है, डेफिनेटली एक टीम बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। सो उसके लिए आप बिल्कुल कैसे कर सकते हो कि जैसे आपके पास अगर बैंडविथ है तो यू कैन हेल्प समवन एल्स, कि लेट्स से उसके टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया या उसका कुछ पार्ट है उसमें उसको मैं कहीं पे हेल्प कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ यू कैन लाइक बिल्ड अ सॉलिड यू कैन से रिलेशनशिप। एंड ये चीजें तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप लोग इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे हो, बिकॉज लोग मुझसे पूछते हैं स्टूडेंट्स की सर इंटर्नशिप लग गई है, इसको क्या ऐसी चीजें करें कि हम पीपीओ में कन्वर्ट कर पाए। तो ये जो चीजें मैं तुम लोगों को अभी मैंने बताई है ना, वही चीजें अगर तुमने इंटर्नशिप के टाइम पे फॉलो कर ली, डेफिनेटली पीपीओ वगैरह मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ये चीजें फॉलो करी हैं। एक हमेशा इनिशिएटिव लिया है चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को करने का, कभी भी सैचुरेशन फील नहीं होने दिया। जब भी मेरे को सैचुरेशन लगा, मैं दूसरी कंपनी में गया जहां पे मेरे को और चैलेंजिंग चीजें मिल सके। अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यू, कि आप किसी टेक स्टैक पे काम कर रहे हो कि ठीक है अभी इसमें नई चीजें क्या आई हैं, कैसे और इसमें ग्रो कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या अच्छा बना सकते हैं। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड ऑल द टाइम। एंड सॉफ्ट स्किल्स भी सीखना बहुत जरूरी है, लाइक हाउ टू कम्युनिकेट विद managers, how to communicate with the customers, clients, email writing, and like many other things. Those are the soft skills which you also need to learn. That's how like you will become a solid IT professional. Yes, sir. Thank you very much for your job experience. Yeah. So we can have our questions now.